नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लाटीवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और आज हम पहुंचे हैं रोहतक रोहित मलिक जी के पास। और रोहित मलिक जी के बारे में आपको बता दूं, उनके पास जो इंडियन मैस्टिफ है वो है स्टोन। और रोहित मलिक जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं हरियाणवी इंडस्ट्री की। वो राइटर भी हैं और सिंगर भी हैं। और उनका एक फेमस जो सॉन्ग है वो है रॉयल जाट, हम छोरे जाट सां। आप YouTube पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो आओ दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं रोहित मलिक जी से। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so
remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है रोहित मलिक जी और इनके पास जो इंडियन मैस्टिफ है उसके बारे में हमारे को जानकारी देंगे। और इंडियन मैस्टिफ बुली कुत्ता का नाम है स्टोन के बारे में हमारे को बताएंगे दोस्तों। तो रोहित भाई, सबसे पहले जैसे कि हमारा सवाल होता है कि आपको जो डॉग्स का शौक़ है वो कब से है और स्टोन है वो कब से आपके पास है? हाँ जी सोनू भाई, आपने अच्छा सवाल किया। पहले तो सारे भाई ना राम राम भाई, हाथ जोड़ के भाई। स्टोन पहले तो शौक भाई हमने बचपन से है सोनू भाई। मतलब पहले जर्मन शेपर्ड, रोट व्हीलर ये पाल लिया करते बचपन से ही भाई। उन ब्रीडा में कुछ खास बात ना लगी जो इनमें है। फिर 2-3 साल से मैंने बुल्ली रखे भाई। बुल्ली में मुझे भाई इंटरेस्ट हुआ, बढ़िया लगे, रॉयल ब्रीड लगी सोनू भाई। फिर मैं भाई यो स्टोन देखा मैंने भाई, यो मैंने बहुत पसंद आया। फिर यो मैंने सोच लिया कि भाई लेना ही है। तो भाई साहब मैं इसने रॉयल भाई है अपने संदीप भाई नरनोल से, वहाँ से लेकर आया था भाई साहब। अब स्टोन को मेरे पास 3-4 महीने हो लिए मेरे पास है भाई। तो जैसे कि आपके पास इतना अच्छा इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता है, तो सबसे पहले मलिक साहब आप हमारे दर्शकों को बताओ कि सबसे पहले जो बुल्ली था आपने कहाँ देखा और कब देखा था? भाई साहब मैंने देखा था छारा गांव में, मेरे मामा के पास था। तभी से मेरे शौक लगा कि भाई बुल्ली ये पढ़ना है। मुझे बहुत हैवी ब्रीड लगी भाई साहब ये। फिर जब तक ये शौक हो गया था भाई साहब बुल्ली रखने का, भाई बुल्ली ये रखना है। तो मलिक साहब, जैसे कि आपने अडल्ट मेल लेके आए हो, हाँ जी भाई साहब। और जैसे कि बुल्ली के बारे में तो बड़ी धारणा है कि बुल्ली तो काट लेता है, बुल्ली अग्रेसिव ब्रीड है। तो आपके मन के अंदर कोई डर या वहम नहीं था भी आप एक अडल्ट मेल लेके आ रहे हो बुल्ली का? ना भाई साहब, ये दिखने में वैसे दिखा है अभी, वैसे बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं। छोटे बच्चे भी घूमते हैं बाहर को, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये बाहर के रात को सिक्योरिटी कर लेता है, दिन में किसी को कुछ नहीं कहता। बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं ये, और ब्रीड से तो अलग है बिल्कुल। तो मलिक साहब, जैसे कि आपने और भी ब्रीड रखी है, अभी बताया आपने, हाँ जी भाई जैसे रोट व्हीलर है और भी बहुत सारी ब्रीड रखी, तो उसमें और इसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है जी? भाई साहब वह ब्रीड थोड़ी मालिक के प्रति अग्रेसिव लगा है, सच्चाई की बात तो ये है। और इसमें थोड़ी ही रॉयल ब्रीड भी है और फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है। ये दिखने में वैसे दिखा है, लोग इन्हें समझा ना बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी ब्रीड है। मतलब सोच के देखा समझा इन्हें, वैसे दिखने में अग्रेसिव है। जो इसने रखा ना उसने पता लग गया है कैसी ब्रीड है ये। तो मलिक साहब, जैसे परिवार के लिए ये कैसे डॉग है फैमिली में? भाई साहब परिवार के लिए इस तरह बेस्ट डॉग तो कोई है ही नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरी माता जी हैं भाई, सिस्टर है, वाइफ है, ये सब घुमा लेते हैं अंदर ही। ऐसे नहीं है कि भाई बच्चा दिख गया तो वो झटके मारा गया, ऐसे मतलब बंदे ने देख कर चाल लिया करे। उन्होंने है कि भाई झटके मार दिए और कुछ मार दिया, कुत्ता देख कर। मतलब बहुत समझदार ब्रीड होती है ये। और मलिक साहब, जैसे कि मोस्टली जो डॉग का पर्पस होता है, हाँ जी भाई साहब, ठीक है, वो होता है एज ए गार्ड डॉग, हाँ जी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बिल्कुल जी। तो उसमें ये कितना खरा डॉग है जी बुल्ली कुत्ता? भाई साहब मेरा तो रोड पे मकान है, आपने देखा होगा, नेशनल हाईवे पे। तो सिक्योरिटी के मामले में तो बिल्कुल एक नंबर का है। क्योंकि बाहर तो आना जाना लगा रहता है रोड पे। तो बहुत ही मतलब बहुत ही समझदार और मतलब सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा डॉग है। तो मलिक साहब, आप हमारे दर्शकों को बताओ भी, आपने इतना अच्छा इंडियन मैस्टिफ हो, इतनी अच्छी केयर की हुई है, इसकी स्किन क्वालिटी कोड और इतना प्यारा है देखो। और तो इसकी आप एक्सरसाइज के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ भी। कोई कहता है कि हम बुली ब्रीड है, इसको ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो आप इसका क्या करवाते हो जी? कितने किलोमीटर की सैर करवाते हो? सोनू भाई मैं तो इसको अब गर्मियों में नॉर्मल घुमाई कराता हूँ, 4-5 किलोमीटर ले गया और वापस ले आया बस। और सर्दियों में रनिंग वगैरह, गर्मियों में स्विमिंग करा दी हूँ, बस यही है। सर्दियों में थोड़ी रेस ज़्यादा लगा दिया रहा,
क्योंकि हैवी डाइट होती है इनकी, उसके हिसाब से ठीक रहे। यानी कि कुल मिला के कोई एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज नॉर्मल है भाई साहब, घुमा ले बिल्कुल आप, बिल्कुल भाई साहब, घुमा के लेता हूँ। डॉग फिट रहे, हाँ, फिट इसलिए डाइजेस्ट वगैरह खाना अच्छे बिल्कुल से जी हो भाई जाए। साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब बात आती है डाइट की। जैसे बड़ी ब्रीड होने के लिए तो इसको डाइट भी अच्छी खासी चाहिए। बिल्कुल भाई तो इसकी सुबह शाम की डाइट के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताओ जरा। भाई साहब सुबह तो देता हूँ 1.5 किलो दही, ओके, और 2-1 घंटे के बाद 10-11 बजे ही इसको मतलब चूरमा बनाता हूँ मैं डेली, क्योंकि इसकी हैबिट ऐसी है बचपन से ये रोटी के टूक नहीं खाता, मतलब मिक्सी में पीस के और मैं वैसे डालना पड़ता है, कुछ डाल दे नून घी वगैरह, ये कभी दोपहर में फिर पनीर वगैरह डाल देता हूँ भाई साहब, शाम को चिकन वगैरह डालता हूँ मैं, तो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी भाई साहब सब्जी डाल देता हूँ उसमें हरी, ठीक है, ताकि वो गर्मी वगैरह ना करे। ठीक है। हाँ जी और भाई साहब। डीवॉर्मिंग वगैरह कितने टाइम बाद? भाई साहब डीवॉर्मिंग तो मैं 2 महीने 3 महीने के बाद कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, 2-3 महीने। हाँ 2-3 महीने का गैप देकर कर लेता हूँ जी। तो आप मलिक साहब इसकी ब्लड लाइन के बारे में बताओ, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले भी इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है जी। भाई साहब इसका फादर तो है किंग कोबरा, जो नारनौल में अमित भाई दौर है, फिलहाल अमित भाई दौर है, और मदर साइड है इसकी ग्रेट शेरू, जो चाइना सिंधु वाले भाई के पास था, ग्रेट शेरू उसकी मदर साइड है इसमें। तभी इसकी जो लुक है सेम टू सेम हाँ जी। शेरू के जैसी लुक है इसकी। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल शेरू कोई कह नहीं सकता भी हाँ ये दूसरा शेरू है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल ग्रेट शेरू की कॉपी है हाँ ज़्यादातर जी, हाँ तो, जी, बिल्कुल बिल्कुल वही great शेरू। कलर मार्किंग, वही बॉडी चेक, सब कुछ वही है इसका। और एक बात और मलिक साहब, हाँ जी भाई साहब। इसकी ब्रीडिंग के बारे में आप बताओ। भाई साहब अभी तो कोई ब्रीडिंग नहीं करी अभी इसकी, तो अभी भविष्य में देखते हैं कभी। और स्टोन की हाइट, लेंथ, वेट, एज, जो मेन चीज होती है। हाँ जी भाई साहब, ये हाँ जी, भाई साहब इसकी हाइट है 32, ओके, और इसकी हाइट लेंथ तो कभी हम नापी नहीं, वेट है 75-80 kg के बीच में, ठीक है। गर्मियों में 70-75 हो जाए, 75-80 सर्दियाँ में हो जाए। और उम्र इसकी हिसाब? उम्र भाई साहब 3 साल के लगभग हो गए, 2 महीने के बाद 3 साल का हो जाएगा वो। ओके। हाँ जी भाई साहब। मलिक साहब आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई साहब सोनू, ये मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जो गली में ये देसी कुत्ते हैं भाई, इनकी देखभाल करो भाई। गर्मी आ गई, बर्तन में पानी रख दो भाई, कोई बीमार कुत्ता दिखा तो डॉक्टर के ले जाओ भाई। हम तो ये संदेश दे वहाँ भाई, पशु पक्षी साबित है, पानी रख दो बार, गर्मियों में बहुत प्यास लग गया भाई। आप यो संदेश देना चाहूँगा भाई साहब मैं तो। और दोस्तों बहुत अच्छा संदेश दिया है मलिक साहब ने, और ये हमारे को करना भी चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार इस धरती पे हमारा है उतना ही इनका है, तो बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। बिल्कुल भाई साहब। भाई साहब मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ भाई, हमारे एरिया के रोहतक में डॉक्टर दीपक दलाल हैं, जो ये देसी कुत्ते हैं या कुछ भी है, मतलब देसी कुत्ते वगैरह, इनका फ्री में इलाज करते हैं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ भाई जी, जो भी गली में दिखा हुआ कुत्ता, उसको डॉक्टर दीपक दलाल के पास ले जाओ और फ्री में इलाज कराओ भाई। कोई गली में घूमता हो, ये बड़ी सेवा कर रहे हैं भाई साहब। डॉक्टर दीपक दलाल है, बहुत मशहूर डॉक्टर है रोहतक के, एनिमल लवर है। और भाई साहब और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो एनिमल्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब। डॉक्टर के साथ साथ लवर भी हैं, हाँ, पेट लवर भी हैं भाई। जिसको भी मिले कोई देसी कुत्ता गली में हो तो सेवा धर्म है भाई, ले जाओ भाई, इतना काम कर दो वहाँ पे, वो इलाज डॉक्टर बिल्कुल फ्री में करता है, दीपक दलाल। तो बुल्ली वर्ल्ड के लिए आपका क्या संदेश है? भाई साहब ये है कि भाई बुल्ली ब्रीड को आगे ले जाओ भाई साहब। आपका बहुत ही मतलब वो करता हूँ मैं तो धन्यवाद, जो भाई बुल्ली को आगे ले जा रहे हो भाई साहब, दूसरे देश तक आपके भाई ब्रीडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई साहब। और हमारे चैनल के बारे में क्या व्यूज हैं आपके? भाई साहब चैनल के बारे में तो यो है भाई, बहुत बढ़िया चैनल चला रखा है आपने, और 1 नंबर चैनल है भाई। लाइक सब्सक्राइब करो सारे भाई, हाथ जोड़ के विनती है। सोनू भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दूर तक आए हैं, सुबह 3 बजे तो घर पे चल रही है, मेरे पास 5 बजे पहुंच गए थे भाई। धन्यवाद। धन्यवाद।